Hello students, welcome to the class of biology. I am Farhat Sheikh, going to teach you on the topic circulatory pathways in various organisms. So today's topic is circulatory pathways. So in today's lecture, we are going to see how the circulatory pathway will be different in different organisms. So first of all, let us begin. Before beginning with the pathways, let us see the circulatory pattern in different organisms. So the circulatory pattern in different organisms is mainly of two types. Either it is of open type or it is of closed type. Now open types means what? Suppose heart is located here and the blood vessels. So the red blood vessel carries oxygenated blood and the blue blood vessels carries deoxygenated blood. So here these are the cells in the open space. This open space is known as sinus. So this is known as sinus, or we can say open cavities. So these are the cells present in the open cavities. So here as we can see, the blue color one is the vein. So this is the vein and this is artery. So artery is carrying oxygenated blood and vein is carrying deoxygenated blood. So here as we can see, from the heart the blood is coming through the blood vessels and through the blood vessels it is entering into the opening cavity. That is why we can say here the circulatory system is of open type. Now coming to the closed circulatory pathway, here this one is heart. From heart arises the vessels. So this is the vessel. Again we'll label it first. So this is our artery. This is vein. Here the cells are present. Now here we can see the blood is flowing in a closed form. मतलब pathway जो है पूरा complete है. यहाँ पर कोई open vessels या open cavities नहीं है. Blood जो flow हो रहा है वो बीच में यहाँ पर ये जहाँ पर artery और vein merge हो रहा है, this region is called capillary. So here the blood is flowing in a closed form. हार्ट से वेसल, वेसल से कैपिलरीज और कैपिलरी से फिर वेन में इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है. सो दिस इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो वी कैन सम इट अप. ओपन वाला जो है यहाँ ब्लड में द ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम हार्ट टू द ब्लड वेसल्स and from blood vessels it is going to the sinuses or we can say the open cavities. जबकि यहाँ पर हार्ट से blood is moving to the blood vessels
ब्लड वेसल्स में क्या क्या आएगा? आर्टरीज, आर्टरीज से जा रहा है कैपिलरीज में, कैपिलरीज से आ रहा है वेन्स में, एंड वेन्स अगेन इट इज गिवन टू द हार्ट। तो यहां पर ऐसे क्लोज फॉर्म में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जबकि यहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर? सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द एग्जांपल includes mollusca, mainly cephalopods, then arthropoda, and one exception is there, that is in Annelida, only leeches. Shows open type of circulatory system. Okay, so open circulatory system के example हो गए mollusca, mollusca के सिर्फ cephalopods, except cephalopods will come, sorry, मतलब एसिफेलोपोड्स आएंगे यहाँ पर, मोलस्का, देन आर्थ्रोपोड्स एंड लीचेस। ओके, नाउ एग्जांपल्स ओवर हियर इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, सबसे पहले तो यहां से आ जाएंगे सिफेलोपोड्स, मोलस्कन्स, देन नेक्स्ट आ जाएंगे द फर्स्ट फाइलम having closed circulatory system. This is one of the PYQs. Name the first phylum having the closed circulatory system. So that is Annelida. Then it includes vertebrates. So this is how the circulatory pattern is seen in different organisms. That is either it is open type or closed type. Open type जो है जिसमें blood जो है ब्लड वेसल से फ्लो तो होता है, लेकिन देन आफ्टर इट इज पोर्ड इनटू द ओपन कैविटीज, जबकि यहां पर इन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड जो है ब्लड वेसल के थ्रू, हार्ट ब्लड वेसल एंड देन कैपिलरी से फिर से ब्लड वेसल की हेल्प से सर्कुलेट करता है। सो दिस इज हाउ द सर्कुलेटरी पाथवे इज सीन। नाउ लेट अस सी वर्टिब्रेट्स जो है इनमें किस तरह से ब्लड का फ्लो या सर्कुलेटरी पाथवे देखने को मिलता है। So now let us start with the vertebrates. Now vertebrates जो है जनरली इनका हार्ट जो होता है वो मस्क्यूलर होता है। Now depending on the metabolic rate of organism, this heart is divided into chambers. I repeat, हार्ट के चैम्बर्स जो है वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक रेट के ऊपर। जैसे इफ वी टॉक अबाउट फिश, फिश पानी में रहती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है, इतनी ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर उसके लिए नहीं होती। दैट इज व्हाई द हार्ट ऑफ फिशेस इज टू चैम्बर्ड। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिश। ओके, नाउ फिशेस इवॉल्व होकर ऑर्गेनिज्म आ गए लैंड पर। अब ये जो लैंड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इनको जंप करना है, भागना है, स्क्वीक करना है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, मतलब उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स का जो हार्ट हो जाएगा दैट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट। सो दिस 3 चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिजम्स आर, एग्जाम्पल इसके आएंगे लंग फिशेस, दैट इज एन एक्सेप्शन, और आएंगे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नाउ एक्सेप्शन है यहां पर क्रोकोडाइल इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, सो द एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल। which is not included in 3 chambered heart. Okay, now अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो यहाँ का जो ब्लड है वो भी मिक्स फॉर्म में होता है, मतलब एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है।
तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को और फुलफिल करने के लिए हमारे जैसे मैमल्स जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है हम, तो हमको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारा जो हार्ट है दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, हमारा हार्ट कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट में एग्जाम्पल क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा क्रोकोडाइल फ्रॉम रेप्टाइल्स, देन एव्स दैट इज बर्ड्स एंड मैमल्स। So, according to the energy requirement, according to the metabolic rate of individual's body, the heart is divided into different chambers, number of chambers. Fishes में 2 chambered heart होगा, then lungfishes, amphibians और reptiles में 3 chambered heart है, जबकि crocodile, aves और mammals में 4 chambered heart होगा। Understood everyone? Okay? Are you all clear till here? Is there any query? Name the first phylum that shows the closed circulatory system. Yes, yes, it is Annelida. Okay, chalo. So now we are going to first start with the circulatory pathway of fishes. That is 2-chambered heart. So let us start with the heart of fishes. Okay, now how the circulation is taking place. So this is sinus venosus, this is atrium, ये है ventricle, and this is conus arteriosus. Now fish जो है, ब्लड जो है फिश के बॉडी में, बॉडी से मूव करते हुए ऑल कौन सा होगा यहाँ पर ब्लड? CO2 वाला ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जो है वह एंटर करेगा साइनस विनोसस में। नाउ हियर आई नीड टू मेंशन वन थिंग कि फिश में साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस, these are the 2 accessory chambers which are present here in fishes. Okay, so sinus venosus and conus arteriosus, or it is also known as truncus arteriosus. Okay, these are the 2 accessory chambers present apart from atrium and ventricle. So now as we can see, CO2 वाला जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है साइनस विनोसस में, फिर जा रहा है एट्रियम में, एट्रियम से जा रहा है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस। अब यहां तक ये जो ब्लड फ्लो होकर आ रहा है ये कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गिल्स जो है यहां पर रेस्पिरेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो यहां पर गिल्स से यहां से CO2 रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गिल्स से बॉडी को सप्लाई किया जाएगा, फिर बॉडी रेस्पायर करेगा, CO2 बनाएगा, ये CO2 फिर से सर्कुलेट करके ऐसे गिल्स के पास पहुंचेगा और ये जो पाथवे है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो नाउ हियर वी कैन सी बॉडी में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है चिल्ड्रन? द ब्लड फ्लोइंग हियर इन द बॉडी इज कौन सा है? आर्टरी वाला ब्लड है या वेन वाला ब्लड है? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनेटेड? यस, इट इज deoxygenated blood. So we can say here that in fishes blood flow कैसा है? Venous blood. Blood flowing is venous blood. क्यों कहेंगे venous blood?
जनरली वीनस ब्लड हम किसको कहते हैं? ऐसा ब्लड जो वेन्स में फ्लो होता है, और वेन्स में फ्लो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि पूरे फिश के बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो हो रहा है। गिल्स प्योरीफाई करके फिर दे रही है, बट दैट इज नॉट थ्रू द एंटायर बॉडी, दैट इज वाई द ब्लड फ्लोइंग इज वीनस ब्लड। वन मोर थिंग चिल्ड्रन, देखा हमने यहाँ पर बॉडी से ये जो ब्लड, ये हार्ट है पूरा, सो बॉडी से ब्लड मूव करते हुए हार्ट से वापस आ रहा है बॉडी के पास, मतलब ये चल रहा है एक पाथवे में। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सिंगल सर्कुलेशन मतलब ब्लड जो है एक ही बार हाथ में जा रहा है और फिर बॉडी में आ रहा है, एक पाथवे चल रहा है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, इसको हम कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? ओके। नाउ एज वी हैव सीन इन डबल सर्कुलेशन, single circulation, the energy requirement of those organism will be less, but as we move ahead to the higher organism, that is to reptiles and amphibians, so their energy requirement is more, जिसकी वजह से यहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स का जो हार्ट होगा वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ताकि उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, वो जमीन पर रह रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म उनके बॉडी में ज्यादा होगा, दैट इज वाई दे रिक्वायर्ड 3 चैम्बर्ड हार्ट, राइट? सो नाउ इफ वी सी 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसा होगा, इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। So, 3-chambered heart में we are going to study the heart of frog, because heart जो है वो क्या है? It belongs to the class amphibian, right? Class amphibian को frog belong करता है, मतलब it had a 3-chambered heart. Now, roughly first I will show you the diagram कैसे होगा। So ये है एक 3-chambered heart. The upper 2 chambers are called atrium. You will find somewhere they are called auricles. Auricles बाहर से देखते हैं तो उसको auricle कहते हैं, because they appear like ear pinna. That is why they are called auricle. But internally they are called atrium. Now जो हमारा right side होगा, that is going to be the left one. मतलब ये हमारा क्या होगा? ऐसे हम खड़े, लेफ्ट हैंड, मतलब ये हो गया राइट एट्रियम, ये है राइट हैंड तो ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, बट ओनली सिंगल वेंट्रिकल इज प्रेजेंट। ओके, तो ये हो गया 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब इस 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा? हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है लंग्स, और यहां पर है हमारे टिश्यूज। सो टिश्यूज से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पहुंचता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो जाता है वेंट्रिकल में। एट द सेम टाइम लंग्स जो है वो ब्लड को ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वापस जा रहा है ब्लड वेंट्रिकल में। तो यहां पर क्या हो रहा है? यू कैन सी राइट एट्रियम ने भी ब्लड दिया वेंट्रिकल को, और लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड दे रहा है वेंट्रिकल को। मतलब यहां पर ये आया CO2 वाला ब्लड, और लंग्स ने दिया ऑक्सीजन वाला ब्लड। ब्लड तो दोनों अलग अलग आ रहा है, एट्रियम अलग है, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर ब्लड दोनों मिक्स्ड हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर इन ऑर्गेनिज्म में कैसा ब्लड होगा? मिक्स्ड ब्लड इज फ्लोइंग हियर, है ना चिल्ड्रन? हियर वेंट्रिकल में कैसा ब्लड हो गया? मिक्स्ड ब्लड। और मिक्स्ड ब्लड होगा मतलब एनर्जी जो बनेगी वो कम होगी। कैसी होगी? कम होगी, है ना? सो नाउ लेट अस सी द हार्ट्स का फ्रॉग का हार्ट कैसा होगा। सो लेट अस ड्रॉ डायग्राम ऑफ इट। सो लेट अस चिल्ड्रन ड्रॉ द हार्ट ऑफ अ फ्रॉग।
So here I am drawing the heart of a frog. So as we can see here, see, 3 chambers are there. The upper 2 chambers are atria and the lower single chamber is ventricle. This one is right atrium. This is left ventricle, sorry, atrium. This is ventricle. Then ये है, this is called sinus venosus. This sinus venosus ends in, this is post caval vein, or it is also known as inferior vena cava. Okay, then ये वाले जो दो है, these are known as pre-caval veins और superior vena cava. इसके अलावा यहां पर प्रेजेंट होगा हमारे पास these are the 2 pulmonary veins. And here we have these are the aortic trunks. Now children, this is the dorsal view of a frog. कौन सा है ये? डॉर्सल व्यू है. ओके, सो डॉर्सल व्यू ऑफ अ फ्रॉग में हमको क्या क्या दिख रहा है? वी हैव द अपर 2 चेंबर्स कॉल्ड एट्रिया, द लोअर सिंगल चेंबर कॉल्ड वेंट्रिकल. व्हाइल as we have seen fish में था एसेसरी 2 चैम्बर्स थे, साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टीरियोसस. कोनस आर्टीरियोसस हमको दिखेगा, हम बनाएंगे अब वेंट्रल व्यू उसमें. सो दिस साइनस विनोसस इज प्रेजेंट. अब पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेकर आते हैं कौन? एक तो ये साइनस विनोसस में आएगा पोस्ट एंड प्री केवल वेन्स, ये लेकर आती है ब्लड को और पोर करती है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम के यहां पर बीच में प्रेजेंट होते हैं वाल्व्स, गेट्स होते हैं. जब ये गेट खुलते हैं तो यहां से ब्लड एंटर करेगा वेंट्रिकल में. सेम वे ऊपर से लंग्स जो है तो वो लंग्स से प्योरीफाई होने के लिए ब्लड जाएगा. प्योरीफाई मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड जाएगा लंग्स में. तो वहां लंग्स से राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को पोर किया जाएगा और फिर गेट ओपन होंगे तो वही ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में. क्लियर? तो ये हो गया डॉर्सल व्यू. नाउ लेट अस ड्रॉ अ वेंट्रल व्यू ऑफ अ हार्ट. So this I am drawing a ventral view of a heart. These are the 2 branches. So this is called truncus arteriosus. यहां पे आ जाएगी इंफीरियर वेना केवा, बिकॉज ये ला रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो इंफीरियर यहां पे आ जाएगी
सुपीरियर वेना केवा, राइट, ओके, सो ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, देन दिस इज ट्रंकस आर्टेरियोसस। अब ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है, हियर दिस ट्रंकस आर्टेरियोसस आगे चलकर ये बनाएगा एओर्टा। ये एओर्टा ब्रांच होकर बनाती है दो एओर्टिक ट्रंक। सो दीज आर टू एओर्टिक ट्रंक्स। अब ये जो एओर्टिक ट्रंक है ये ब्रांच आउट हो जाती है तीन आर्चेस में। ओके, सबसे पहली जो ऊपर वाली आर्च है, दिस इज नोन एज कैरोटिड आर्क। द सेकेंड वन इज कॉल्ड सिस्टेमिक आर्क, and the third one that is called pulmocutaneous arc. ओके, सो ट्रंकस आर्टेरियोसस का काम होता है पूरे बॉडी को प्योर ब्लड पास करवाना। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है वो ब्रांच होता है दो एओर्टिक ट्रंक पे। एओर्टिक ट्रंक जैसे यहां पर तीन आर्चेस में डिवाइड हुई है, सेम यहां पर भी आएगी, तीन आर्चेस में डिवाइड हो जाएगी। सो हियर ऑल्सो इट विल डिवाइड इनटू थ्री आर्चेस, दैट इज कैरोटिड आर्च, सिस्टेमिक आर्क एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्क। ओके, नाउ कैरोटिड आर्क जो है उसका काम होता है ब्लड का सप्लाई करवाना टू द ब्रेन, फेस एंड द नेक रीजन। ओके, अगेन कैरोटिड आर्क का काम है ब्लड का सप्लाई करना टू द ब्रेन, फेस एंड द नेक रीजन। पल्मोक्यूटेनियस आर्क का काम है ब्लड का सप्लाई करना टू द लंग्स एंड द स्किन। और बाकी का बचा सिस्टेमिक आर्क जो है वो सप्लाई करेगा ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स को। ओके, सो फ्रॉग के पास हमने देखा ये फ्रॉग का डॉर्सल व्यू ऑफ द हार्ट, और ये जो है दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ द हार्ट। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन चिल्ड्रन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट। सो ये है डॉर्सल व्यू और ये है वेंट्रल व्यू। सो फ्रॉग जो है उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। अगेन इट हैज द एसेसरी चैम्बर्स दैट इज साइनस मिनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस। क्लियर? ओके, नाउ हमने देखा, हमने पढ़ा 2 चैम्बर्ड हार्ट, हमने पढ़ा 3 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड में वी हैव सीन एग्जांपल एज फिशेस, और 3 चैम्बर्ड में हमने मेनली फ्रॉग के हार्ट को पढ़ा, राइट। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑल्दो हमने देखा फ्रॉग की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म उसके बॉडी का फास्ट है, बट स्टिल फ्रॉग से और इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है जिनका मेटाबॉलिक रेट और ज्यादा फास्ट है। सो ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिशेस है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है। ओके, इनका ये जो ऑर्गेनिज्म है, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और दे आर नोन एज पोइकिलोथर्मल्स। ओके, सो किसको, फाइलम कौन से सॉरी क्लास कौन सा होगा? फिशेस, दैट इज पाइसेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। पहले एम्फीबियंस आएगा, बाद में रेप्टाइल्स आए हैं। सो फिशेस, देन एम्फीबियंस एंड देन रेप्टाइल्स। तो इनके पास जो इनका बॉडी जो है वो कैसा है? कोल्ड ब्लडेड है, और वी कॉल देम एज पोइकिलोथर्म्स। मतलब इनको इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके चिल्ड्रन, सो अभी तक हमने पढ़ लिया है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग विथ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन एव्स एंड मैमल्स, let us see certain questions. See now, open circulatory system is present in किसके किसमें प्रेजेंट होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? देखो ऑप्शन है आर्थ्रोपोड्स,
क्या आर्थ्रोपोड्स में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? देन मॉलस्क एंड एनालीड्स एंड बोथ ए एंड बी. तो एनालीड्स में तो वी हैव सीन द फर्स्ट फाइलम हैविंग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ए एंड बी इज करेक्ट. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट इन फर्स्ट, सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वीनस ब्लड, याद है सबको? वीनस ब्लड जो है किसमें फ्लो होता है? इट फ्लोज इन द फिशेस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फिशेस. नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन occurs in, see, incomplete double circulation किसमें होता है? It occurs in reptiles and amphibians, right? So option D is correct. All right, चलो, so let us start with now circulatory system or circulatory pathway in birds and mammals. अब हम पढ़ने वाले हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स, and these 4 chambered heart organisms are called warm blooded animals. So aves and mammals, these are known as warm blooded animals, or they are also known as homeotherms, होम्योथर्मिक एनिमल्स. क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि बाहर का कुछ भी टेम्परेचर हो, चाहे वो हो जाए 40 डिग्री सेल्सियस या फिर वो हो जाए 10 डिग्री सेल्सियस, हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब हमारा बॉडी जो है एडजस्ट कर लेता है. क्या करता है हमारा बॉडी? हर तरह के टेम्परेचर को हमारा बॉडी चेंज नहीं करता है. हमारा बॉडी उन सारे टेम्परेचर के लिए, दैट इज हम क्या कहेंगे? होम्योथर्मिक. दैट इज हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस है. दैट इज एबिलिटी टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर. हम अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सराउंडिंग टेम्परेचर. दैट इज व्हाई वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. नाउ एज वी नो द हार्ट ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल इज 4 चैम्बर्ड. कितने चैम्बर्स है? 4 चैम्बर है. मतलब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म फास्ट है. So that is why our heart is 4 chambered heart. So first let us see the rough diagram of 4 chambered heart. तो ये है हमारा 4 chambered heart, right? ऊपर वाला जो है as I have said, लेफ्ट साइड हमारा हाथ जहां पर है that is right, और राइट साइड होगा हमारा लेफ्ट. तो ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट. देन यहां पे होंगे हमारे लंग्स और यहां पे है हमारे टिश्यूज. टिश्यूज ने रेस्पिरेशन किया और बनाया बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, इसको हमें अपनी बॉडी से निकालना है बिकॉज वो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है. तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो ब्लड है यहां से लेकर आना पड़ेगा राइट एट्रियम में. अब इस ब्लड को राइट एट्रियम तक लेकर आएगा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे हार्ट, एज वी नो हमारा हार्ट जो है वो मस्कुलर हार्ट है, मतलब वो खुद भी काम कर रहा है. तो हार्ट जब काम कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है, तो वो खुद भी तो CO2 बना रहा है. तो उसका जो CO2 होगा उसको भी तो लेकर आना पड़ेगा ब्लड को राइट एट्रियम में. सो दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी साइनस. सो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, ये सब लेकर आएंगे. कैसा ब्लड आएगा? CO2 वाला ब्लड. So I'll write here with the blue color. So CO2 or deoxygenated blood comes to the right atrium, right? अब at the same time क्या होगा? lungs जो है, ये lungs के पास जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला ब्लड, क्योंकि लंग्स का काम क्या है?
एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। तो लंग्स ने एक्सचेंज करके जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो भेज दिया लेफ्ट एट्रियम के पास। तो यहां पर दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम के पास किसकी हेल्प से आएगा? इट विल कम विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। राइट अब देखो दोनों अपर चैम्बर्स आर फिल्ड विद द ब्लड। राइट एट्रियम के पास आ गया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम के पास भी आ गया है ब्लड। सो नाउ दे विल कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर बीच में ये जो रीजन है यहां पर प्रेजेंट है गेट्स। राइट एट्रियम के पास जो गेट होगा दिस गेट इज नोन एज एवी वाल्व। क्या है यहां पर? एवी वाल्व। दैट इज एवी। एवी का फुल फॉर्म क्या होगा? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व। राइट सो एवी वाल्व प्रेजेंट होगा, यहां पर भी है, इवन यहां पर भी प्रेजेंट होगा एवी वाल्व। सो राइट साइड का जो एवी वाल्व है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि उसके पास कस्प है, 3 कस्प है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड। जबकि लेफ्ट साइड पर होगा बाइकस्पिड, 2 कस्प वाला। सो बाइकस्पिड वाल्व और इट इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। ओके सो दोनों एट्रियम भर गए। एट्रियम में जब भर जाएगा ब्लड तो नाउ दे विल कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस एवी वाल्व जो गेट्स है वो गेट्स खुल जाएंगे। सो यहां से राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जबकि लेफ्ट साइड में जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट नाउ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये भर जाएंगे वेंट्रिकल्स, तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड भेज देगा यहां से लंग्स को विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ब्लड जो है वो चला गया लंग्स में फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि CO2 वाला ब्लड है ना। जबकि लेफ्ट एट्रियम जो है यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो चला जाएगा एयोर्टा में। द ब्लड विल गो टू द एयोर्टा एंड एयोर्टा की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो टिश्यूज को। सो यहां से ब्लड जो है वो टिश्यूज के पास चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ एयोर्टा। सो एज वी कैन सी हियर ब्लड यहां पर देखो राइट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, राइट दोनों में आया। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल में चला गया ब्लड, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड निकल गया बाहर, लंग्स में चला गया, यहां से लंग्स में गया, यहां से पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो क्या हो रहा है यहां पर ब्लड जो है एंट्री कर रहा है, फिर बाहर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है ना। राइट एट्रियम से आया, वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स, लंग्स से फिर आ रहा है लेफ्ट साइड पर। मतलब यहां पर 2 बारी 2 times the blood is entering the heart. So this type of circulation is known as double circulation. ऐसे सर्कुलेशन को क्या कहेंगे हम? डबल सर्कुलेशन। So this double circulation is a characteristic feature of mammals and aves. So now in double circulation we have seen that the blood is coming twice to the heart, right? So now how this is happening, let's see. So from lungs the blood is going to the heart. Again from heart the blood is going to the lungs, right? So here from lungs the blood is going to the heart with the help of, yes, from the lungs the blood is going to the heart with the help of pulmonary vein.
So which type of blood it is? This is oxygenated blood, right? From the lung, oxygenation hokar the blood is coming to the heart, so it is oxygenated blood. From heart, the blood is going to the lungs with the help of pulmonary artery, and this is deoxygenated और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड विच इज गोइंग टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन. तो यहाँ पर जो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे लंग से हार्ट में आ रहा है ब्लड, देन हार्ट से वापस लंग में जा रहा है, इस सर्कुलेशन को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन. राइट चिल्ड्रन, इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन. दैट इज लंग से with the help of pulmonary vein the blood is coming to the heart, and then from heart the blood is going to the lung for purification with the help of pulmonary artery. Same way अब टिश्यू में भी ऐसे ही हो रहा है. From tissue the blood is going to the heart, और हार्ट से वापस ये ब्लड जो है वो पहुंच रहा है टिश्यू को. So टिश्यू से हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, it is occurring with the help of great veins. Yes, which are those great veins, everyone? The great veins are superior vena cava, then inferior vena cava and coronary sinus, है ना? So these are the three great veins जो ब्लड को टिश्यू से लेकर आ रही है हार्ट में. कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अब हार्ट से जो ब्लड है वो जा रहा है टिश्यू में. कैसा ब्लड जा रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट से टिश्यू में, और जाएगा किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एओर्टा. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एओर्टा. तो यहाँ पर ये वाला जो सर्कुलेशन होगा, दिस सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो डबल सर्कुलेशन में कौन से दो सर्कुलेशन आएंगे चिल्ड्रन? पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन. इज इट क्लियर? ओके, चलो. सो लेट अस सी अ क्वेश्चन. सो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. ओके, क्या कहा है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यस, नहीं होता है मिक्स. The left and the right ventricle pump out oxygenated and deoxygenated blood respectively. ये भी करेक्ट है. लेफ्ट वाला जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और राइट वाला जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है. थर्ड इज देयर आर टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज. यस, दो अलग अलग पाथवेज हैं. एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट. राइट. सो I hope children you all must have understood the entire lecture. Right? So now we discontinue here, and I hope that we will see more number of lectures in the next session. So my hearty thank you to every one of you. Bye.